Welcome to Enlight Education video. I am Ankit Patel and today we are going to start Plant Kingdom. Till now we have completed chapter 2 in which we have studied about different 5 kingdoms, right? Which includes all living organisms. They are Monera, protists, fungi, plant and animals, right? And now we are going to study about plants, right? We have studied about different organisms. We have seen that what kind of similarities and differences are there in the basic structure of or in cellular structure of fungus, plants and animals, right? Means all these organisms, fungus, plants and animals are having eukaryotic cells. Even protozoans are having, protists having eukaryotic cells, but fungus and plants are having cell wall on their outermost covering, right? Some of the protists are also having outermost covering as cell wall, right? So fungus and plants are having outermost covering on their as their cell wall. But in fungus, cell wall is made up of cellulose and chitin. Cellulose is there or not, but chitin are always present. Chitin molecule is always present in the cell wall, right? Cell wall of fungus. In plant, chitin can never be found in plant cell wall, right? In cell wall, chitin can never be found in plant cell wall. Whereas in fungus, all the time in cell wall, this chitin is present. Moreover, fungus are saprophytic. They have saprophytic mode of nutrition. Plants are having phototrophic mode of nutrition. Plants अपने से ही अपना food prepare करते हैं जिसमें से उनको energy मिलती है. They are performing photosynthesis, right? So these are the basic difference between plants, a plant kingdom and other kingdom, right? Further, this plant kingdom is divided into 2 sub-kingdoms. They are cryptogames and phanerogames. तो cryptogames और phanerogames क्या है वो भी देख लेते हैं. Now cryptogames are cryptogames because these plants are having their embryo hidden. These plants are having their embryo hidden, right? We cannot find embryo very easily in such kind of plants. Phanerogames are called phanerogames because here embryo is not conspicuous, right? Here embryo can be found very easily. Embryo are there in their seeds. Understood? We know about seeds of phanerogames, right? All the plants which are producing seeds belongs to phanerogames, and all those plants which are not having seeds belongs to cryptogames. And because these plants, cryptogames, does not have seeds, where their embryo is lying is conspicuous. Understood? So they are having conspicuous or hidden embryo. While phanerogames, in phanerogames, embryo can be very easily find out in their seeds. Understood? So these 2 sub kingdom are there in plant kingdom. ये 2 sub kingdom है cryptogames और phanerogames, ठीक है? अब cryptogames में कौन सा फाइला आता है? Algae, Bryophyta and Pteridophyta. और phanerogames में कौन सा फाइला आता है? Gymnosperm and Angiosperm. Mind that in phanerogames all plants are bearing seeds. In cryptogames no plants are bearing seeds. तो ये याद रखना है, ठीक है? Cryptogames मतलब जिसमें seeds नहीं है, और जो प्लांट्स में सीड्स मिलते हैं दे बिलोंग्स टू phanerogames, ठीक है? अब आ जाते हैं चलो कि क्रिप्टोगेम्स में कौन से ये तो हम लोग ने देख लिया, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. इसमें भी बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग. एल्गी ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें मल्टीसेलुलर बॉडी है बट दे डोंट हैव टिश्यू. ब्रायोफाइट्स में हम लोग कह सकते हैं कि यस दे आर हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जबकि अगर टेरिडोफाइटा देखते हैं तो टेरिडोफाइटा में हम लोग को organ level of organization मिलते हैं. They are having true root stems and leaves. Algae and bryophyte does not have root stems and leaves. Understood? Algae और bryophyte में root stem leaf जैसे structure मिल जाते हैं, but they are not true stem, true leaf और true roots. Understood? जबकि टेरिडोफाइटा में हम लोग को true leaves मिलते हैं, true roots मिलते हैं और true stem मिलता है. Understood? अब phanerogames में देखते हैं तो phanerogames में भी stem, root, leaves अच्छे से दिखने को मिल जाता है. They are true roots, true stems and true leaves. But in phanerogames seeds are not covered by fruit. Seeds are naked. जबकि phanerogames में seeds are covered by fruit. Understood? I'm not talking about seed coat. I'm talking about fruit. Understood? जब आप fruit डिटेल में पढ़ोगे तब आपको fruit और seed coat के बीच में बहुत confusion होगा. Understood? When you will study fruit in detail. Exactly, fruit is a layman term, biological term है.
पेरिकार्प, बायोलॉजिकल टर्म इज पेरिकार्प, अंडरस्टूड। जो मैंगो हम लोग खाते हैं, द पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूट विच वी आर ईटिंग इज एक्चुअली पेरिकार्प का भी 3 लेयर्स होते हैं, उसमें से बीच वाला लेयर है वो हम लोग खाते हैं, जिसको मेसोकार्प बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो ये सब बाद में पढ़ने की बात है, अभी हम लोग प्लांट का जनरल आई मीन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो लेट्स फोकस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, राइट। तो चलिए प्लांट का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, बाद में हम लोग सारे वी विल गो थ्रू ऑल 5 फाइला, बट बिफोर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए कि कौन से बेसिस पे हम लोग ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। सी देयर कैन बी वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया इफ वी वांट टू डिस्कस, राइट। जैसे शेप ऑफ लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स है, फ्लावर का अरेंजमेंट है, लीव्स का अरेंजमेंट है, ब्रांचिंग, रूट का ब्रांचिंग, स्टेम का ब्रांचिंग, राइट। देयर कैन बी इन आई मीन, और हम लोग जब बच्चे थे आप लोग ऐसा भी पढ़ते थे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। बट दीज आर वेरी वेरी आई मीन, ये क्लासिफिकेशन का कोई इतना बेसिस नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, राइट। दीज ऑल आर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, ये सारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। हम लोग जब ऊपर से प्लांट को देखते हैं तब ये सब हम लोग को डिफरेंसेस दिखते हैं, बट दीज आर जब हम लोग एक्चुअली में इंटरनली व्हेन वी सी देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे डिफरेंसेस बहुत छोटे पड़ जाते हैं। दे आर almost unconsiderable, almost they are unconsiderable, right? We cannot classify plants depending on whether they are shrubs, herbs, trees, creepers or climbers, right? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे भी है, बहुत सारे सिमिलरिटीज ऐसे भी है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे सिमिलरिटीज कैरेक्टर्स ऐसे है बहुत सारे जो हमें हर्ब्स, 2 अलग अलग हर्ब्स में डिफरेंट होते हैं, बट हर्ब, एक हर्ब प्लांट में और एक श्रब प्लांट में सेम होता है, या फिर एक हर्ब प्लांट में और एक ट्री प्लांट में सेम होता है, अंडरस्टूड। सो वी, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है कि हम लोग कौन से कैरेक्टर्स ले। तो जो थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं तो हम लोग ये कंफ्यूजन क्लियर कर पाए, ठीक है। अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज वेरी सुपरफिशियल, बहुत ऊपर से देख के बनाया। अब ऑब्वियसली पहले के जमाने में बायोलॉजी इतना एडवांस में हम लोग नहीं जानते थे, राइट। क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी भी इंप्रूव हो रहा है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन सेकेंड चैप्टर में मैंने जैसे आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया बस अब ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये भी हम लोग जो प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं दैट इज ऑल्सो आउटडेटेड, इससे भी नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उससे भी नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया है, अंडरस्टूड। बट अगर हम लोग ये समझते हैं तो ही वो क्लासिफिकेशन सिस्टम समझेंगे, और अगर आपको बॉटनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ही आप उसमें जाओगे, राइट। तो चलो अभी ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे सिलेबस में है उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहले क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? अब यहाँ पर 2 टाइप की क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया कि जिसमें से हम लोग सुपरफिशियल कैरेक्टर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, एकदम जो हम लोग अभी जितना जानते हैं उसमें अभी हम लोग जितना डीप जा सकते हैं वो डेप्थनेस में जाके कैरेक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम का डिफरेंस क्या है और दोनों का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जहां पर कौन से कैरेक्टर्स को क्राइटेरिया में लिया गया है, देखो क्या कौन से क्राइटेरिया है। हैबिट ऑफ प्लांट, नंबर, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, ठीक है। ये सारे हम लोग कैरेक्टर्स ले रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी लेते हैं हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, राइट। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर दोस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच आर हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, स्टेमिंग, कटिंग, लेयरिंग, ये सब आर्टिफिशियल मेथड है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि जिसमें ग्रासेस रनर्स से उग जाते हैं। आप लोग को मालूम होगा ग्रासेस कहीं पर ग्रो हो गया है और अच्छा ऐसा पानी मिल जाएगा मिट्टी को, तो ग्रासेस विल स्प्रेड इन द सॉइल, राइट। दैट इज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। ऐसे तालाब में भी आप देखोगे तो तालाब में भी कुछ प्लांट्स पहले थोड़े से उग जाएंगे, उसमें ज्यादातर आइकोर्निया होता है। दिस आइकोर्निया प्लांट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड, ठीक है।
तो ये प्लांट्स, ये सारे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन से होते हैं। अब ये इतने फास्ट क्यों ग्रो होते हैं? बिकॉज यहाँ पर फ्लावरिंग के लिए, मैच्योरिटी के लिए इतना टाइम नहीं जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी डन एट वेरी अर्लियर एज। प्लांट जुवेनाइल फेज में, प्लांट के जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज में ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, मतलब अभी तक इतने मैच्योर नहीं हुए, बड़े नहीं हुए और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट, थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यहां पर हम लोग ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिया है इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वेजिटेटिव कैरेक्टर को क्यों नहीं लेना चाहिए? वेजिटेटिव कैरेक्टर को इसलिए लेना चाहिए बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल प्रेशर, ठीक है, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल प्रेशर, ठीक है। एनवायरमेंट से काफी इन्फ्लुएंस होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसलिए हमें ये नहीं लेना चाहिए। ऊपर से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में और क्या किया है भाई, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स है, ऑल दोज कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दोनों को इक्वल कंसिडरेशन दिया है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है क्लासिफाई करने के लिए। दिस ऑल्सो शुड नॉट डन, अंडरस्टूड। ये सब चीजें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में देख लेते हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्राइटेरिया कौन सा है? तो सबसे पहला है एनाटॉमी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी, अंडरस्टूड। फिर है एम्ब्रियोलॉजी, अंडरस्टूड, अगेन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, अगेन इंपॉर्टेंट। मतलब देखो ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग इंटरनली देख रहे हैं, प्लांट्स को अंदर से देख रहे हैं कैसे रहे प्लांट्स, अंडरस्टूड। तो ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं जब हम लोग प्लांट्स का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इवन बेंथम एंड हुकर करके दो साइंटिस्ट है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये दो साइंटिस्ट है, ये लोग ने फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स ही यूज किए हैं, अंडरस्टूड। एंड दे आर वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट फॉर स्टडीइंग एंजियोस्पर्म। तो ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं। और सबसे अच्छा जो मैं मानता हूं क्राइटेरिया, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट, सिर्फ बॉटनिस्ट नहीं, बायोलॉजी में जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, ये क्राइटेरिया को सबसे ज्यादा मानते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स, राइट, फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया। अब ये फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है? दैट मीन्स इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले कौन सा प्लांट हुआ था, फिर उसमें से इवॉल्व होकर कौन सा प्लांट आया, फिर उसमें से इवॉल्व होकर कौन सा प्लांट आया, फिर उसमें से इवॉल्व होकर कौन सा प्लांट आया। तो हमेशा एक स्पीशीज से नया स्पीशीज इवॉल्व होता है, फिर उससे नया स्पीशीज इवॉल्व होता है, फिर उसमें से नया स्पीशीज इवॉल्व होता है। तो जितने दूर के स्पीशीज है, मतलब सपोज ये दो स्पीशीज में ए में से बी आया, बी में से सी आया, सी में से डी में से ई आया, तो ए और ई में जितना डिफरेंस है और ए और बी में कितना डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी वेरी लेसर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड देयर विल बी वेरी हायर डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई, अंडरस्टूड। तो ए और ई अलग अलग ग्रुप में आएंगे, जबकि ए और बी सेम ग्रुप में आएंगे। So these are the most reliable criteria for classification, that is phylogenetic classification, phylogenetic criteria, understood? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इवोल्यूशनरी के लिए एविडेंस चाहिए तो वी आर डिपेंडिंग ऑन पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? फॉसिल्स, ठीक है, इट मीन्स फॉसिल्स। अब फॉसिल्स मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, लेकिन हम लोग के पास ये फाइलोजेनेटिक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए इनफ फॉसिल्स नहीं है। वी डोंट हैव इनफ पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस to make this criteria, to complete classification of plant kingdom on the basis of this criteria, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग और दूसरे 3 टाइप के टेक्सोनॉमी है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अमॉन्ग देम फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, देन फाइटोटेक्सोनॉमी, फिर केमिकल टेक्सोनॉमी। एक करके आ जाता है कि तीनों काइंड ऑफ टेक्सोनॉमी में क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, ये एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड टेक्सोनॉमी है, जहां पर कंप्यूटर सिस्टम यूज किया जाता है। और ये टेक्सोनॉमी में हर एक कैरेक्टर्स को नंबर और कोड असाइन किया जाता है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर को नंबर या कोड असाइन किया जाता है। तो यहां पर होता क्या है कि टू ईच कैरेक्टर इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन, ठीक है। हर एक टाइप के कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है और एक साथ हम लोग 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
सो दिस इज, तो ये कंप्यूटर यूज करने का फायदा है, ठीक है, कि हम लोग इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो दैट्स व्हाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड, आई मीन कंप्यूटर्स आर यूज्ड। तो जहां जहां पर फॉसिल एविडेंस नहीं है, जहां जहां पर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज करते हैं। फिर दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या क्या हम लोग को सेलुलर कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज मिलती है, डिफरेंस मिलते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर्स, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर एटसेट्रा। तो ये सारे स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंसेस है, कितना सिमिलरिटीज है, उसके हिसाब से हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी यूज करते हैं, ठीक है, फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। अगर ये सब यूज करने के बाद भी हम लोग को और भी कंफ्यूजन है, तो यहां पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं केमोटैक्सोनॉमी, राइट? वी आर यूजिंग केमोटैक्सोनॉमी। अब केमोटैक्सोनॉमी क्या है? केमोटैक्सोनॉमी मतलब हम लोग प्लांट्स में कैसे कैसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके हिसाब से प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फिर फाइटोकेमिस्ट्री, और एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या था वो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, राइट? सो ऑल दिस कैरेक्टर्स हम ये सारे कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ये सारा मिला के हम लोग ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया है। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट किंगडम, आई मीन क्राइटेरिया ऑन विच प्लांट किंगडम आर क्लासिफाइड। सो वी हैव कंप्लीटेड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। और एक चीज यहां पर मैं आपको प्लांट के बारे में बताना भूल गया, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज देयर इन प्लांट्स, राइट? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? एक्चुअली ये बुक में देखा जाए तो अभी नहीं आता है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर बुक, बट इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें होना इंपॉर्टेंट है बिफोर वी गो टू एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अंडरस्टूड? ये हर एक टाइप के प्लांट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? मतलब एक जनरेशन में हमको कुछ और टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, फिर दूसरे जनरेशन में कुछ और टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, तीसरे जनरेशन के जो प्लांट है वो फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट है, और फिर फोर्थ जनरेशन वाले प्लांट है वो सेकेंड जनरेशन जैसे है। कहने का मतलब यहाँ ऐसा है कि यहाँ पर दो टाइप के जनरेशन होते हैं, वन इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक फेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड स्पोरोफाइटिक फेज। अंडरस्टूड? तो गैमेटोफाइटिक फेज से स्पोरोफाइटिक फेज आता है, स्पोरोफाइटिक फेज से गैमेटोफाइटिक फेज आता है, मींस वन जनरेशन, लेट्स से फर्स्ट जनरेशन इज गैमेटोफाइटिक फेज, तो उसमें से स्पोरोफाइटिक फेज नेक्स्ट जनरेशन की तरह आएगा। फिर ये स्पोरोफाइटिक फेज से थर्ड जनरेशन आएगा, दैट इज गैमेटोफाइटिक फेज। फिर गैमेटोफाइटिक फेज से फोर्थ जनरेशन आएगा, दैट इज स्पोरोफाइटिक फेज। फिर स्पोरोफाइटिक फेज से फिफ्थ जनरेशन आएगा, दैट इज गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, ऐसा ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्लांट जनरेशन में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, प्लांट लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, राइट? दैट मींस गैमेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज दोनों ऑल्टरनेटली आता है, इसलिए इट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। यहाँ पर जनरेशंस ऑल्टर्ड होते रहते हैं। अंडरस्टूड? ऑल्टरनेटली दे आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहां पर हर एक प्लांट में फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। यहां पर होता क्या, एक्चुअली गैमेटोफाइटिक फेज होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जिस वी हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और ये चीज हर टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलता है, गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, दिस गैमेट्स आर फ्यूजिंग टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट हो गया डिप्लॉइड, राइट? अब हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, ये हम लोग ने माइटोसिस और मियोसिस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन वीडियो ऑफ चैप्टर 10। अंडरस्टूड? गैमेटोफाइटिक फेज के जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल द सेल्स ऑफ गैमेटोफाइटिक फेज आर हैप्लॉइड सेल्स। याद रखना, ऑल द सेल्स ऑफ गैमेटोफाइटिक फेज आर हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स मींस दे आर हैविंग only one set of chromosome, that is half content of DNA. Understood? They are having only one set of chromosome, half content of DNA. दूसरा है स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज में हम लोग को मिलते हैं उसमें सारे सेल्स, all cells of sporophytic phase are diploid. यहां पर हर एक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2 sets of chromosomes and complete content of DNA. 2 sets of chromosomes and complete content of DNA in each cell of sporophytic phase. Understood? एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक हर एक प्लांट में, हर एक टाइप के प्लांट में
ये दो जनरेशन देखने को मिलते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज में हर एक सेल्स हैप्लॉइड सेल्स है, स्पोरोफाइटिक सेल्स में हर एक स्पोरोफाइटिक फेज में हर एक सेल्स डिप्लॉइड सेल्स है। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या है? हैविंग हाफ कंटेंट ऑफ डीएनए, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल्स मतलब क्या है? हैविंग फुल कंटेंट ऑफ डीएनए, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों, कैसे हाउ दिस इज पॉसिबल? तो गैमेटोफाइटिक फेज होता है, उसमें से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइटिक फेज इज दैट फेज विच आर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। जो फेज में गैमेट्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलेंगे गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, गैमेट्स, अब दो गैमेट्स है, दो गैमेट्स फ्यूज होंगे। अब दोनों गैमेट्स में कितने कंटेंट, आई मीन हाउ मच कंटेंट ऑफ डीएनए इज देयर? हाफ ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए, हाफ प्लस हाफ, वन कंप्लीट कंटेंट ऑफ डीएनए, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स कंबाइन होकर बन गया डिप्लॉइड सेल। अंडरस्टूड? ये मैंने मियोसिस के फंक्शन में आपको बताया था, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में बताया था। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से वो वाला वीडियो एक बार चालू करके देख लो फिर से, और ये वीडियो फिर से यहां से कंटिन्यू कर देना। ठीक है, टाइम नोट करके यहां से वीडियो कंटिन्यू कर देना। ठीक है, तो कहां तक हम लोग पहुंचे कि भाई गैमेटोफाइटिक फेज में हैप्लॉइड सेल्स है, स्पोरोफाइटिक फेज में डिप्लॉइड सेल्स है। गैमेटोफाइटिक फेज गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स से फिर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से गैमेट्स का फ्यूजन होके फिर यहाँ पर क्या होता है? स्पोरोफाइटिक जाइगोट बनता है, और जाइगोट जैसे बन गया वैसे स्पोरोफाइटिक फेज यहां से शुरू होता है। स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट्स राइट फ्रॉम जाइगोट फॉर्मेशन। स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट्स राइट फ्रॉम जाइगोट फॉर्मेशन। जब जाइगोट फॉर्म हो गया तब स्पोरोफाइटिक फेज शुरू हो गया। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइटिक फेज क्या होता है? अगर ये यूनिसेल्युलर है, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो ये जाइगोट ही मियोसिस करेगा। ठीक है, जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन। अंडरस्टूड? देखो ये 10 चैप्टर पहले हमने समझ लिया, तो ये समझना कितना आसान हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो इसलिए मैंने आपको 10 चैप्टर पहले समझाया। दिस जाइगोट, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो स्पोरोफाइटिक फेज यूनिसेल्युलर है, अगर स्पोरोफाइटिक फेज यूनिसेल्युलर है तो यही जाइगोट मियोसिस अंडरगो करेगा, मतलब मियोसिस डिवीजन करके 4 स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोर्स। इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। हियर यहां पर सिर्फ ये स्पोरोफाइटिक फेज के ही सेल मियोसिस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सेल्स ऑफ स्पोरोफाइटिक फेज ओनली कैन डू मियोसिस। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, इफ स्पोरोफाइटिक फेज इज मल्टीसेलुलर, देन सम सेल्स ऑफ दिस होल प्लांट, only some cells of this whole plant will undergo meiosis. कुछ ही सेल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मियोसिस में जाएंगे और 4 हैप्लॉइड, एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। अंडरस्टूड? ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइटिक फेज बनाएंगे। अंडरस्टूड? द फेज विच इज प्रोड्यूसिंग स्पोर्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइटिक फेज। the phase which is producing spores are called sporophytic phase. वो फेज, वो जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फेज को, वो जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक फेज का मियोसिस हुआ, मतलब स्पोरोफाइटिक फेज में मियोसिस हुआ। अगर 1 सेल का है तो एक ही सेल मियोसिस कर देगा। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर है तो सम ऑफ देयर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस, ईच सेल विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। अंडरस्टूड? ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइटिक फेज में डेवलप हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज अल्टरनेटली होता है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए ना? अभी इतना समझना इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? क्योंकि ये चीज हम लोग सारे फाइलम के बारे में, सारे फाइलम में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग इन ऑल द फाइलम। अंडरस्टूड? तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज क्या है, और सारे प्लांट में, इन ईच टाइप ऑफ प्लांट, दिस 2 फेजेस आर देयर। अंडरस्टूड? दिस 2 फेजेस आर देयर। अंडरस्टूड? और ये 2 फेजेस में बहुत डिफरेंस होता है हर एक टाइप के प्लांट में। अंडरस्टूड? और हर एक, इन ईच टाइप ऑफ फाइलम, out of these 2 phases, one phase is main phase, either gametophytic phase or sporophytic phase. कुछ फाइला में gametophytic phase इंपॉर्टेंट है, मेन फेज है, और स्पोरोफाइटिक फेज सब्सिडियरी फेज है। तो कुछ फाइला में सब्सिडियरी फेज गैमेटोफाइटिक फेज है और स्पोरोफाइटिक फेज मेन फेज है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके जब फाइलम पढ़ेंगे
तब उसमें हम लोग इन ईच फाइलम, फॉर ईच फाइलम वी विल स्टडी दैट विच फेज इज मेन फेज एंड विच फेज इज सब्सिडियरी फेज एंड व्हाई दे आर मेन एंड सब्सिडियरी फेज। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग प्लांट किंगडम का जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं।